Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome everybody. I am Dr. Amjad Ali and now I am going to deliver lecture number 9 for the course of Advances in Human Resource Development and Management. So let's student first of all discuss the review or recap of previous lecture number 8. Within that lecture we discuss the role of selection interviews in the process of selection. We said that it is actually a face-to-face interaction between interviewee and interviewer in order to evaluate his or her attitude, performance, skill, behavior or other personality traits in order to check the suitability of this applicant for the position that has been announced. So it actually involves only oral communication whereby they check their suitability by exchange of ideas. Well, there are different types of selection interviews. There are certain structured interviews and there are certain unstructured interviews. Well, the validity of structured interviews is higher than rest of the unstructured interview types. Well, in the last lecture we have also discussed certain techniques in order to conduct effective interviews. Here we discussed that you are to plan the interview, you are to actually control the interview, you are to actually manage the flow of the interview, and we have also discussed certain questions that should never be asked from the participants, from the applicants. Then after this process of interview, selection interview, within the selection process, the next step was background investigation. Here the employers were required to check their information that they have actually provided with respect to their educational qualification, with respect to their employment records. We are also required to check their credit history or their criminal record in order to avoid lawsuits that the company may face at some later point in time. Well, the final step in this selection process was actual making the final selection decision. So it would be actually based upon the match of the characteristics of vacancy and characteristics of the applicant. Final was to make the job offer that it can be made through a telephone call, it may be made through a written letter that should be describing the essential details of the job, uski job description, uski kya leke starting time, salary, working conditions. It shouldn't be stating anything that may change later on. इसमें कह दें कि आपका वर्किंग स्केड्यूल, तो इस तरह की चीज़ें जो लेटर ऑन चेंज हो सकती हैं, दिस शुड नॉट बी एक्चुअली गिवन इन दिस job letter. Well, the job letter should be actually requiring the applicants to sign the letter and send it or return it to the company. That would be actually kept as a record of employment for this person. Final, we discussed the placement of employees. Here we said that we should be actually checking person job fit and person organization fit. So it's very important to have a very good match regarding the KSAOs of the person and the job description that we have actually developed for that very job. So there would be a very good match between the KSAOs of the person and the job description, so that this person would be giving a top performance on that job, because there is a good match, because this person has all the required KSAOs in order to perform on that job. Now this was a review of lecture number 8. Let me start our current lecture, that is lecture number 9. So here we are going to start another area within this human resource management. This is the area of performance management. Here in this lecture we would be discussing what is actually performance management, what are the purposes of performance management,
Then we would be discussing certain criteria for effective performance management systems. Then we will be showing you the link between performance management system with organizational strategy, outcomes, and results. Next, we will be discussing the process of performance management, and out of this process we will be discussing probably two of the steps. First, identifying and measuring employee performance. Then we would be discussing some of the aspects of how to go for performance appraisal. Now, starting with the lecture, first we are to discuss what is performance management and why an organization should go for this practice, that why an organization should indulge within performance management. क्या ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन को इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने की, कोई इसका बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई एम्प्लॉइज़ के लिए बेनिफिट है, हम क्यों ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करें, जो अपरेंटली लगता है कि इट्स नॉट नीडेड बिकॉज वी haven't seen any such activity within small organizations. हम कभी नहीं देखा कि छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, छोटे से बिजनेस में हम ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं. तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को या एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना चाहिए? Because large organization need sophisticated systems in order to manage their employees performance. So अगर employees तो हैं 5-10 तो आसान है, कौन क्या कर रहा है डिस्कस हो सकता है, किसने क्या करना है, क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, आपने कैसे इम्प्रूव करना है, आपकी अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो आपको बता देगी. लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल विद इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज देयर आर thousands of employees are there, so we cannot actually manage it by any of the informal system. So हमें एक formal system बनाना पड़ेगा in order to check the performance, उसकी मेजर करना और उसमें एक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, फुल फ्लैश सिस्टम चाहिए. Well, it is also needed, performance management system is needed because even well-intentioned employees do not always know what is expected or how to improve. एक बंदा जो काम करना चाहता है उसे पता ही नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसने एक्चुअल काम क्या करना है, या अगर उसको कोई प्रॉब्लम तो how this person would be going to improve his or her performance. Then this performance management system जो है, it provides an opportunity to furnish evidence that dismissal or removal of a particular employee is based on proper performance record, कि इसकी performance poor थी इसलिए हमने निकाला. So it may give us some evidence or proof that why we have actually terminated the job of a person. तो ये इसके कुछ कहते हैं कि रीजंस हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के. नाउ लेट अस सी व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, हाउ वी कैन डिफाइन दिस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. So actually this is a process through which managers ensure that employees' activities and outputs contribute to the organization's goal. तो ये वो सिस्टम है जो हमें इंश्योर करेगा कि एक्चुअल जो एम्प्लॉयज कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज, उनके आउटपुट्स, उनके परफॉर्मेंस, उनका बिहेवियर दैट इज इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी है, जो डायरेक्शन है, वाकई सारे लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं. ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन कहती है गो इन दिस वे एंड एम्प्लॉयज आर गोइंग इन समवट डाइवर्टेड वेज, यूं जा रहे हैं कोई यूं जा रहा है, ऐसा नहीं होने. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जो है ना, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर करेगा that all employees are actually exerting their efforts in the direction that organization has set for these employees. अच्छा, हम इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या करते हैं? एक्चुअली इट स्टार्ट्स विद नोइंग व्हाट एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स आर डिजायर्ड. सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स आर डिजायर्ड. जो ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन है या ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में, उसकी सारे क्या पर्सपेक्टिव में हमें अपने एम्प्लॉय से किस किस्म के बिहेवियर, एक्टिविटीज या किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए, क्या उन्होंने करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू आइडेंटिफाई दिस. देन वी आर टू क्लैरिफाई ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस टू एम्प्लॉय.
once we have identified, we have defined that this is actual performance expectation. Now we are to communicate this to employees. आपने ये चीजें करनी हैं. So until unless we are able to make them clear to employees को जब पता ही नहीं है तो क्या वो करेंगे. So first we are to know what are the activities, our responsibility, our duties required by our employees that are desired by our organization. और फिर हमने इस एक्टिविटीज को जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं इनको हमने communicate करना है to the respective employees. Then we have to observe and check or measure whether they are achieving on those measures or not. वो चीजें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सिंपल उनको बता देने से भी वो सारे लोग नहीं करेंगे, कुछ करेंगे और ज्यादातर नहीं करेंगे वो चीजें. So we have to actually have a check on their performance. Then by measuring the performance, तो उसके बाद हमने क्या, we have to provide feedback to help employees meet expectations. तो हमने बाद उनको बताना है कि where you were right, where you were wrong, how to improve for these certain areas. ये हमने उनको feedback देनी है. Then we are to identify the developmental steps that are needed to enhance employee performance. तो अब हमने जहाँ पे weak areas है ना उसके जो weaknesses employees के, वहाँ पे हमने उसको बताना है कि what are the steps that you would take or you are required to take in order to improve your performance in that area. तो हमने बाद में उनको बताना है कि आपने यहाँ पे आपकी weakness है और अब आपने कैसे improve करना है. Clear? Then this practice requires that we are to provide rewards for achieving performance objectives. तो जो लोग performance objectives achieve करेंगे तो उनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए ना. ये नहीं कि हम उनको छोड़ने बस ठीक है आपने achieve कर लिए it's okay, आपने achieve नहीं किया then again it's okay. So this should not be the case. Actually the people who the employees who have actually achieved their goals should be rewarded. Bonus, increments, कुछ भी उनको मिलना चाहिए, स्पेशल प्राइज मिलना चाहिए, कोई रिकग्निशन होनी, कुछ न कुछ होना चाहिए. Then at the end we are to document these performance management system for certain personnel or administrative actions. तो उसमें उस सारी चीज़ को रिकॉर्ड में रखना चाहिए. बाद में हमने उसके टर्मिनेशन या उसके प्रमोशन या उसके ट्रांसफर के डिसीजन लेने हैं. So then these documents would be used as evidence. Now moving further, well now we are going to discuss how this performance management system is linked with organizational strategy, with employee performance, with performance management outcomes and organizational strategies. Well here this is performance management system. This seeks direction from this organizational strategy. Organizational strategy सारे dictate करेगी performance management system को कैसे होना चाहिए. इसमें आपने उसकी employees की performance को कैसे set करना है, कैसे measure करना है, कौन सी performance को आपने measure करना है, ये सारी चीजें decide करनी है. Ultimately this would result into employee performance. Employee जो performance management system है ये determine करेगा employee performance. कि employee performance either they are performing on high level or lower level, either they are going for enhancement on quantity or productivity, किस direction में जा रहे हैं, employee performance से determine होगी. Then this employee performance would result in certain performance management outcomes. तो performance management outcomes क्या हैं जी? It may result into pay increases, rewards मिलने चाहिए, incentive मिल सकते हैं उनको, let's say for the achievement of certain monthly or quarterly or yearly objective, they may receive their sales incentive 20,000, 50,000, even annual pay 5 lakh 4 lakh इस तरह मिल सकता है. प्रमोशंस और एडवांसमेंट के डिसीजन भी इसी से बनेंगे, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की बेस पे बनेंगे. वेल दिस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस में रिजल्ट इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो हम आखिर में डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, कि इट में आइडेंटिफाई सर्टन एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज के उन्होंने अब कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है. ये चीज़ हो सकती है, उनकी कैरियर प्लानिंग हो सकती है, और इट मे रिजल्ट इनटू सर्टन डिसिप्लिनरी एक्शंस कि आप किसी को प्रमोट कर सकते हैं, किसी को डीमोट कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, या इवन टर्मिनेशन के भी डिसीजन हो सकते हैं बेस्ड अपॉन वेरी पुअर परफॉर्मेंस ऑफ दीज एम्प्लॉयज. Well, all of these performance management outcome will certainly contribute to these organizational results. तो इसमें results क्या हैं जी? Organizational goals either met or not met,
एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन ये इससे डिटरमिन होगी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन परफॉर्मेंस एंड पे ये पता चलेगा, एंड अगेन दीज ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट्स वुड बी अगेन ट्रांसलेटेड इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। तो अगेन इसकी स्ट्रेटजी जो नेक्स्ट टाइम बनेगी ईयरली या 5 years के बाद जो सारी चीज़ें रीप्लान होती हैं, रीडिज़ाइन होती हैं, अगेन उसमें ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट्स की जो अचीवमेंट है उसका रोल होगा। सो this slide shows us that how performance management system is actually related with the organizational strategy, with the employee performance, then with organization performance management outcomes, and finally organizational results. Now here we are going to discuss what are the probable purposes of performance management. Performance management के क्या purposes होती हैं? So broadly speaking, the purposes of performance management are 3. It is done for certain strategic purpose, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि जिस स्ट्रेटजी से लिंक होती है, जो स्ट्रेटजी गाइड करती है सारी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को. सो first or foremost purpose of this performance management system is strategic one. So it would be actually helping the organization achieve its business objectives. Business objectives को achieve करने में ये organization को help करती है by linking employee behavior with organizational goal. अब उनके जो भी employee behaviors organizational goals के साथ आपने link कर दी हैं. Employee के behaviors को आप assess करेंगे, measure करेंगे with respect to its match, its consistency, alignment with organizational goals, and by communicating employees their goals and feedback on their performance. So as performance management system administrator, we are to communicate employees with their goals, अब उनकी performance expectation क्या है, or after we have measured their performance on the job, then we are to actually give feedback to these employees. The next purpose of this performance management system is administrative one. हमने last slide में भी discuss किया है कि it may result into certain administrative decisions. So it actually provides information for day-to-day decisions about salary, benefits and recognition programs. तो आपकी सैलरी है या बेनिफिट्स हैं, बोनस हैं, वो डिसाइड होते हैं इस परफॉर्मेंस अप्रेजल के रिजल्ट्स के ऊपर. वेल इट सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू एम्प्लॉय टर्मिनेशन, एम्प्लॉय रिटेंशन, हायरिंग एंड ले ऑफ. सो जो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं वो भी अगेन इसी के ऊपर बेस करेंगे. सो इट एक्चुअली फुलफिल सेकंड पर्पस, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव वन. ये फुलफिल होता है. फाइनल इज डेवलपमेंटल. लास्ट स्लाइड में कहा कि जी वो इट में रिजल्ट इनटू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन एरिया वेयर ऑर्गेनाइजेशन वुड बी प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स फॉर सर्टेन एम्प्लॉयज. सो this would result because organization has identified that this employee is not able to perform on this area, it lacks certain ability. So on the basis of effective performance management feedback, employees are aware of their strengths and areas for improvement. तो उनको पता चल जाता है अपने strengths का और weaknesses का, जिसे हम कहते हैं areas of improvement. तो strength तो ठीक है, वो उनके लिए acceptable है, लेकिन weaknesses कहना employees को, that is certain उससे रिएक्शन पैदा होता है. we can say it's a negative term, weakness. So we हम इसे क्या लेंगे, जो बुखार की गोली होती है बहुत कड़वी होती है, तो उसे क्या करते हैं, उसके ऊपर कोटिंग, शुगर कोटिंग हो जाती है. तो एक्चुअली हम जो वीकनेस है ना उसको शुगर कोटिंग करनी है बाय सेइंग इट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एक्चुअली क्या है, उनके वीकनेसेस हैं, बट दिस इज अ शुगर कोटेड कोनीन. अच्छा, एम्प्लॉइज हु अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स मे बिकम मोर वैल्यूएबल व्हेन दे हियर एंड डिस्कस देयर परफॉर्मेंस फीडबैक. सो हम वो वाले एम्प्लॉइज जो अपनी अचीव करते हैं परफॉर्मेंस, उनको भी हम डेवलप कर सकते हैं इन द सेंस दैट बाय डिस्कसिंग देयर फीडबैक टू देम दैट यू आर strong in this area, you have done in a nice way this job, you were excellent on this task, you were up to the mark, you were satisfactory on this level.
तो ये सारी चीज़ अब पता चलते हैं इवन अ पर्सन हु इज परफॉर्मिंग वेल would be feeling valuable and would be exerting their effort in order to improve his or her performance in to a next level. और ज़्यादा उनकी कोशिश होगी कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें. Then we are to discuss here certain criteria for effective performance management system. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है सारा ये हमारी प्रैक्टिस है, ये कैसे होना चाहिए, हाउ वी कैन एक्चुअली judge the effectiveness of this system. So first of all, it should be in line with strategy of the organization. It should be fit with the strategy. Strategy के साथ इसे चलना है, strategy से थोड़ा सा भी deviate हुआ so काम हो जाएगा खराब. So the basic and foremost purpose or criteria for effective performance management system should be its fit with the strategy. So here we are to see that whether the system would achieve employee behavior and attitude that support organization strategies, goals and culture. तो हमें देखना है कि जी जो हमारा सिस्टम है क्या ये प्रोड्यूस करेगा एम्प्लॉय बिहेवियर और एटीट्यूड्स या परफॉर्मेंस या आउटपुट that are actually in line with organization strategy, goals or culture. तो हमें वो वाली सारी चीज़ें करानी हैं उनसे जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच करती हैं, कंसिस्टेंसी में है. वो चीज़ें नहीं करवानी जो उसके थोड़ा सा भी अगेंस्ट हैं या इवन डेविएट कर रही हैं. So if an organization focuses on customer service, so we should not be actually requiring employees to focus on quantity. Rather than we should be making our employees to focus on quality of interaction, quality of customer service. So हमने कहीं पे भी ये इंडिकेशन नहीं देना है कि जी you are required to deal more number of customer, handle more number of calls, और आपने कितने ज़्यादा रूम रिजर्वेशन किए हैं, कितने ज़्यादा आपने इनवाइसेस बनाई हैं, कितने ज़्यादा आपने बिल बनाए. ये नहीं, हमने फोकस करना है कस्टमर सर्विस पे, फोकस करना है हमने क्वालिटी पे. ठीक है, तो सारी चीज़ें जो हमारे एम्प्लॉय के बिहेवियर, एटीट्यूड्स, उनकी वैल्यूज़, उनकी परफॉर्मेंस, उनके आउटपुट शुड बी इन लाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, उसके गोल या कल्चर. नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज दैट जो हम इसमें मेजर्स यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, वो रिलायबल होनी चाहिए. ठीक है ना. सो व्हाट इज रिलायबिलिटी, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि इंटरव्यूज कैसे रिलायबल होते हैं या टेस्ट कैसे रिलायबल होते हैं. तो इसका मतलब है कि हाउ मच इज द कंसिस्टेंसी विद रिस्पेक्ट टू द रिजल्ट्स ऑफ दिस वेरी मेजर. वहाँ पे भी हम किसी मेजर की बात कर रहे थे कि इंटरव्यू इज अ मेजर टू चेक देयर बिहेवियर और देयर फिटनेस, और टेस्ट एक मेजर के तौर पे चेक करो तो उनकी एबिलिटी या उनकी एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए. तो कंसिस्टेंस रिलायबिलिटी एक्चुअली उसकी कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने वाली बात है कि क्या ये फ्री फ्रॉम रैंडम एरर है, एक ही तरह के रिजल्ट देते हैं रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट दैट हु यूजेस दिस टूल और मेजर, और किसके लिए यूज हो रहा है. अगर एक ही टेस्ट में आज लूँ मेरा स्कोर 100 है तो दूसरे दिन 200 नहीं हो जाने, दूसरे दिन मेरा स्कोर 105, 95, 98, 103 इस तरह होना चाहिए. रैंडम शिफ्ट नहीं होना चाहिए. थोड़े थोड़े चीजें तो हों लेकिन रैंडम शिफ्ट नहीं होना चाहिए. रिलायबिलिटी किसी भी स्केल में, किसी भी मेजर में रिलायबिलिटी होनी चाहिए. तो यहाँ पे जो हमने परफॉर्मेंस को मेजर करना है, सो इट शुड गिव रिलायबल रीडिंग. उसकी जो मेजरमेंट है वो रिलायबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए. ये ना हो कि एक एम्प्लॉय के लिए मैंने किया है कुछ और रिजल्ट है, एक और बंदा है कि वही क्राइटेरिया लगाता है तो उसका ऑल टुगेदर रिजल्ट डिफरेंट नहीं आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए, टू सम एक्सटेंट सेम आना चाहिए. ठीक है. सो रिलायबिलिटी एक्चुअली डिस्क्राइब्स द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट दैट अ परफॉर्मेंस मेजर विल डिलीवर. कैसे जो परफॉर्मेंस मेजर जो डिलीवर करते उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रिजल्ट्स की. अच्छा, इसमें दो चीजें, इंटर रेटर रिलायबिलिटी इज कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट व्हेन मोर देन वन पर्सन मेजर्स द परफॉर्मेंस. तो अगर दो मैनेजर एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस मेजर करते हैं तो इसको जो हमारे पास स्केल है मेजर है उसको सेम रिजल्ट देने चाहिए. एक बात. दूसरी बात यह है कि जी जो ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होनी चाहिए, इट रेफर्स
to the consistency of results over time. आज हमने एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस मेजर किया तो उसने अचीव किया स्कोर जी 78 आउट ऑफ 100. सो अगर आफ्टर 1 वीक मेजर करें तो ये नहीं होना चाहिए उसकी 90 हो जाए या ऑल टुगेदर 15 या 26 हो जाए, उसी 78 के आसपास होना चाहिए. दिस इज टेस्ट रिलायबिलिटी. What is the next criteria for effective performance management system is validity. जो हम measures यूज करते हैं उसको वैलिड होना चाहिए. परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए जो भी हम measures यूज करें दैट शुड बी वैलिड. वैलिडिटी भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. वैलिडिटी फॉर सर्टन टेस्ट, वैलिडिटी फॉर इंटरव्यूज. सो एक्चुअली दिस इज द एक्सटेंट टू विच अ मेजरमेंट टूल एक्चुअली मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर. तो जो एक्चुअल उसका पर्पस है क्या वो वही करता है या कुछ और करता है. दिस इज वैलिडिटी. हम कोई किसी रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, हमें राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. ये वैलिडिटी इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जो हम क्राइटेरिया यूज करते हैं उसके लिए हम इससे मैं आपको दिखाता हूँ एक ये डायग्राम के थ्रू. देखें ये है दो क्या लिखे सर्कल्स. On this left hand there is job performance measure. ये actually job performance measure है. ये जो सर्कल है it measures job performance. ये सारा सही नहीं मुझे लगा लेकिन ये जो लेफ्ट साइड पे सर्कल है ये it measures job performance. ये हम measure यूज करते हैं job performance में. जबकि उसकी actual या true job performance क्या है वो ये है actual या true job performance. ठीक है. सो आइडियली हमें इस राइट हैंड साइड वाले सर्कल को मेजर करना चाहिए. हमारी टूल इसके ऊपर कोइंसाइड करनी चाहिए, इसके ऊपर मैच करनी चाहिए, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, बैलेंस. ये साइड पे है ना तो ये गलत है. एक्चुअली हमें इस सारे एरिया को मेजर करना है. ये सारा एरिया ठीक है ना, ये एरिया हमने इसे मेजर करना है. तो हमारी जो एक्चुअल है ट्रू एक्चुअल और ट्रू जॉब परफॉर्मेंस वो ये सर्कल राइट हैंड साइड वाला सर्कल शो कर रहा है. और जो जॉब परफॉर्मेंस मेजर दैट वी आर यूजिंग वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्कल शो कर रहा है. तो हमें आइडियली इस चीज को मेजर करने चाहिए. ठीक है ना, इस चीज को हमने मेजर करना है. जबकि इन फैक्ट वी आर यूजिंग दिस जॉब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया. ठीक है. तो इसमें हमें मेजर करना है राइट साइड, हम मेजर कर रहे हैं लेफ्ट साइड. तो जो उसमें ओवरलैपिंग है ये क्या है जी, दिस इज ओवरलैपिंग. दिस इज ओवरलैपिंग एरिया. ये इट शोज द वैलिडिटी ऑफ द टूल. तो इतना ये वैलिड है. और ये जो हमारे लेफ्ट साइड पे रह गया फिर ये वाला सारा एरिया, ये सारा एरिया रह गया. ये क्या है, deficiency, that we are actually ignoring certain characteristics, certain traits, certain area that actually constitute his or her job performance. हम उसको measure नहीं कर रहे, इसे हम कहते हैं deficiency of a measure. दूसरी साइड पे contamination है. ये क्या है, हम वो चीजें measure कर रहे हैं जो उसकी job performance को reflect नहीं कर रही. So this is contamination. तो इस साइड पे हमारे जो एरिया ये contamination शो कर रहा है, ये एरिया हमारे एक्चुअल जॉब परफॉर्मेंस को की डेफिशिएंसी को शो कर रहा है. और ये जो एरिया ये वैलिडिटी को शो कर रहा है. नो क्लियर. जो एक्चुअल चीज है हम उसमें से कितना मेजर कर रहे हैं. इट इंटेंड्स टू मेजर ये है ना, ये मेजर करना, जबकि ये कहाँ पे है, ये गलत है. तो जितना हम वो मेजर कर रहे हैं वो वैलिडिटी है, जो हम मेजर नहीं कर रहे हैं वो डेफिशिएंसी है, जो हम एक्स्ट्रा मेजर कर रहे हैं वो किसकी है, कंटेमिनेशन. Validity, this is the extent to which a measurement tool actually measures what it is intended to measure. Then whether performance appraisal measures all the relevant aspects of performance and omits irrelevant aspects of performance. तो हमें सारे relevant को करने चाहिए, जो irrelevant है उसे हमने omit करना है. अच्छा, information that is gathered but irrelevant is contamination. जो हमने देखा that was on left side. Contamination, जो irrelevant information हम gather कर रहे हैं. इसकी एग्जांपल क्या है जी, इफ वी मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स पीपल ऑन हाउ मेनी कॉल्स दे मेक टू कस्टमर. तो ये सेल्स पीपल की
हम मैयर ये है, उन्होंने सेल्स करनी है, उन्होंने कॉल्स नहीं करनी। तो एक बंदा बैठ कर सारा दिन कॉल ही करता रहा, उस मार्केट में गया नहीं। हम क्या है, चूंकि इसने दिन में वो 150 कॉल्स किए हैं, इफेक्टिव है, इसकी परफॉर्मेंस ठीक है। जिसने कॉल्स नहीं की सारा दिन मार्केट में, जिसने सेल किया, हम क्या इसने कोई कॉल नहीं की, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस पुअर है। सो दिस इज कंटेमिनेशन, इररिलेवेंट चीज को हम मैयर कर रहे हैं। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, इफ इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट गैदर्ड बट इज रेलेवेंट, दिस represents the deficiency of a measure. तो इसे हम कैसे देखते हैं कि if we measure employee performance on attendance records but not on whether they work efficiently and effectively, हम सिंपल देखते हैं कौन टाइम पे आया, कौन टाइम पे गया, कितने इसकी अपने किसी भी मंथ में अटेंडेंस है, कितनी इसने छुट्टियां की हैं, इसकी बेस पे हम उसकी अगर परफॉर्मेंस चेक करना शुरू हो जाएं, ठीक है ना। तो ये क्या है जी, हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन इज नॉट गैदर बट इज रेलेवेंट, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, उसके अटेंडेंस रिकॉर्ड पे कर रहे हैं, जबकि हमें उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस देखना चाहिए। तो ये क्या चीज है जी, इट मेजर्स डेफिशिएंसी ऑफ अ मेजर। हम सिर्फ ये अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हम ये जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से ये हम नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस, इज एक्चुअली डेफिशिएंसी। देन इफ वी मेजर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूअर, एक जो इसने इंटरव्यू करने हैं, किस तरह चेक करते हैं, बाय द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हायर्ड। उसने देखें जी कितने हायरिंग की है, हम सिर्फ इस चीज को करते हैं, और हम इसको नहीं करते कि नॉट ऑन द क्वालिटी ऑफ दोज हायर्ड, इसको नहीं करते। सो दिस रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ अ मेजर। तो हमने उसके लिए वो वाली मेजर्स बनाने दैट इज वैलिड, उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए और उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज acceptability. So all measures that we develop for this performance management must meet the practical standard of being acceptable to the people who use it. It should be acceptable. तो इसमें हमें ये ख्याल करना पड़ेगा कि it's not perceived as time consuming by the people. बहुत कोई लेंथी चीज होगी, उसे कहेंगे ये तो आखिर अनडिजायर्ड किस्म की चीज है, टाइम कंज्यूमिंग है। So it is not acceptable to the people who actually administer it, या फिल करनी या उन्होंने फिल करवाने, तो उनको लगा कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर वो उससे देखते हैं कि अनफेयर है, इन बोथ ऑफ द केसेस it is not acceptable, it remains no more acceptable for these employees. Acceptability हमने चेक करनी है, ये हो गई। Next, we are to see that this performance management system should seek specific feedback. Feedback बहुत ही specific होनी चाहिए, ये ना हो कि हम कुछ जनरल चीजें या irrelevant चीजें करें। Well, performance measure should specifically tell employees what is expected. Specifically tell what is expected of them and how they can meet those expectations. पहले आपने उसमें आपकी expectations क्या हैं और आपने कैसे इनको अचीव करना है। तो ये फीडबैक आपने देनी है रिगार्डिंग गोल्स एंड रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस। पहले आपने उनको बताना है कि जी आपके गोल्स क्या है, देन आपने उसे फीडबैक देनी कि हाउ वर यू परफॉर्मिंग ऑन दोज गोल्स। So actually this will help achieve the goals of supporting strategy and developing employees. So इससे क्या होगा, हम we will be able to support our strategy and we will be able to develop our employees. So these were basically 5 criteria that we can employ in order to check the effectiveness of performance management system. Here we said that it should be having a good fit strategy. इसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल हु आर टू यूज इट, एंड इट शुड प्रोवाइड स्पेसिफिक फीडबैक, इसकी स्पेसिफिक फीडबैक होनी चाहिए। नाउ मूविंग फर्दर, नाउ वी आर टू डिस्कस दिस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। एक्चुअली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज हियर आवर टॉपिक इज टू डिस्कस अ प्रोसेस। ये एक्चुअली प्रोसेस क्या है। सो इसकी बेसिकली
तीन मेन स्टेप्स हैं. वी आर टू स्पेसिफाई रेलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस. हमने देखा उसके रेलेवेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके जॉब परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, that should be relevant or in line with the organizational strategy. ऑर्गेनाइजेशन की जो भी डायरेक्शन है, जो उसकी स्ट्रेटेजी है, तो गोल्स हैं, उसमें हमने देखने के रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या है. कोई उसमें इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए और जो रेलेवेंट है उसको हमने इग्नोर नहीं करना है. Then on those identified criteria aspects of performance, we are to actually appraise the performance of employees. हमने उसकी परफॉर्मेंस अप्रेज करनी है, चेक करनी है, मेजर करनी है, रेट करना है उनको. Then based upon this performance appraisal, we are to provide them with feedback. How are you performing on all of those aspects where you were strong, good at, where your performance was satisfactory, and where your performance was less than the mark, less than the standard. So here you could have identified certain areas of improvement. So here you are to solve certain problems with the motivation or ability of employees. इसमें हमने फिर identify किए ना areas of improvement या कुछ और problem हमने identify. इसमें problems solve करने वो सारे employees के और उनकी performance की base पे rewards या उनकी promotions या उनके bonus या उनके प्रमोशन बोनस, उनके इंसेंटिव्स या कोई दूसरे उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको डिज़ाइन करके हमें देने हैं, रिवार्ड्स मिलने चाहिए. हम यहाँ पे हम देखें देयर आर 3 स्टेप्स. हमने रेलेवेंट एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करनी है, परफॉर्मेंस अप्रेज करनी है, फीडबैक प्रोवाइड करनी है. दीज आर 3 मेन स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. Starting with the first step, how we would be able to, ये है जी first step इसका, how we would be able to identify and measure employee performance. हमने इसकी कैसे measure करनी है? Well, what is performance? Actually, employee की performance क्या है? So it is basically what an employee does or does not do. Employee क्या करता है और क्या नहीं करता है. On the basis of this criteria, we can check their performance. Well, there can be numerous criteria, numerous bases on which we can actually measure their performance or base their performance. तो कौन सी aspect यहाँ पे हमने देखने aspects कौन सी हमने check करनी है. So whether we should be checking the quantity of output कि कितना उसने काम किया है, कितने उसने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, कितनी कारें उसने बेची हैं, कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की हैं, कितने कस्टमर्स को सर्व किया, कितनी कॉल्स हैंडल किए. इट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी एस्पेक्ट ऑफ द आउटपुट. दिस वोंट बी सर्विंग द पर्पस फॉर growing our competitive organization. We are also to check the quality of the output. Output जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, जो उसने कॉल्स हैंडल की हैं सारा दिन में क्या, whether this employee has actually got the customer satisfied, क्या उसने उनको satisfactory customer service दी है या सिंपल उसने abruptly सारी calls end कर दी हैं. So customers are annoyed. क्या उसने जितनी भी invoices prepare किए हैं क्या वो correct हैं या उसमें mistakes हैं, क्या उसने इंश्योरेंस पॉलिसी या बैंक अकाउंट से उसने ओपन करवाए हैं तो क्या वो सारे स्टे करेंगे इस कंपनी के इस बैंक के साथ, या वो हेल्दी अकाउंट्स हैं या बहुत वीक और डॉर्मेंट किस्म के अकाउंट्स हैं. सो वी आर आल्सो टू चेक द क्वालिटी ऑफ आउटपुट दैट अ पर्सन इज प्रोड्यूसिंग. देन अब इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ ये भी देखना है कि एक बंदा, आपने कहा कि रिपोर्ट, आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है एंड वी आर टू सबमिट इट टू द कंसल्टेंट, to the client that for which we are serving on tomorrow at 10 o'clock. और वो उस 10 o'clock पे appear नहीं होता, आपको deliver नहीं करता और शाम 5 बजे आकर कहता है ये देखिए कितनी अच्छी रिपोर्ट मैंने बनाई है. So it won't serve the purpose. This type of performance is not required. So output का जो time है, this is also important, that to how much extent this person is able to deliver his or her services at proper time, बिफोर और ऑन टाइम. ये चीज़ देखनी है. और फिर ये भी नहीं है कि जी ये सारे आउटपुट क्वालिटी क्वांटिटी और टाइमलीनेस उसके आउटपुट
तो प्रोड्यूस करे, बट ही is not around the work, he is not actually present within the office or within the organization. So his performance at work is also important, so that some of the important issues or problems can be discussed with that person. अब फिर इसमें उसके another aspect हो सकता है उसकी cooperativeness, कि to how much extent this person extends a cooperative hand to other people. So these 4 or 5 areas can be checked in order to assess the performance of a particular employee. So here these are the few of the ways through which we can check the performance of a typical employee. Now for this performance we are to, for all of these aspects that we have identified, we are to identify criteria, job criteria. So job criteria actually identifies the most important elements in a given job. तो उसमें रेलेवेंट क्या है, इररेलेवेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, अनइम्पोर्टेंट क्या है, अर्जेंट कौन से हैं, अर्जेंट कौन से हैं, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं. इट डिफाइंस व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, जो जॉब क्राइटेरिया, इट डिफाइंस व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन पेज एन एम्प्लॉय टू डू. उसकी जॉब में एक्चुअल क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उसने करना है. ठीक है, सिंपल ये प्रेजेंस एट वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड, आपने सारा दिन बैठना ये नहीं रिक्वायर्ड. सिंपल कोऑपरेटिवनेस रिक्वायर्ड तो है टाइम्स, लेकिन ये नहीं कि आप सारा दिन लोगों के हाँ में हाँ मिलाते रहें. ठीक है ना. सो वी आर टू आइडेंटिफाई जॉब क्राइटेरिया, फिर वी आर टू एक्चुअली चेक और आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन अ गिवन जॉब. अच्छा, अब यहाँ पे हम एक देख सकते हैं मैनेजमेंट जॉब क्राइटेरिया एट अ सैंपल फर्म. तो इसमें उसने कहा मैनेजर की जॉब को चेक किया जाएगा ऑन 3 एस्पेक्ट्स. अब इसमें उसने कहा टॉप पे जी रेवेन्यू इंक्रीज, कि इसने रेवेन्यू को ज्यादा कराना है. और दूसरी इंपॉर्टेंट जो उसने कहा कि इसने कॉस्ट को भी कंट्रोल करना है. तीसरी उसने कहा कि इसने एम्प्लॉय को डेवलप भी करना है. ये सो ऑल ऑफ दीज 3 एरियाज वुड कंस्टिट्यूट द टोटल मैनेजमेंट परफॉर्मेंस. उसकी टोटल परफॉर्मेंस डिटरमिन होगी इस 3 क्राइटेरिया. सो रेलेवेंट एस्पेक्ट्स क्या है जी, ये 3 है. इसमें से अब देखना है कि जी जो आपने कहा कितना इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें आपने ऑर्डर. अब कितना इंपॉर्टेंट है, दिस कैन बी डिसाइड बाय एलोकेटिंग वेट्स that can be used to show the relative importance of several job criteria. तो ये weight जो ना ये उसकी relative importance show कर रहे हैं. So revenue increase has the weight of 40%, cost control 30%, and employee development also 30%, or this whole becomes 100%. So employee performance को हमने जब आइडेंटिफाई करना है तो हमने देखना है उसकी व्हाट एन एम्प्लॉय डूज और डजंट डू, डज और डजंट डू. और फिर इसमें हमने देखा कितनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जॉब क्राइटेरिया में. फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ जॉब आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको हम कह लें कि ऑर्डर दे देते हैं, और उसको हम जितनी इंपॉर्टेंस की बेस पे, हम रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बेस पे हम उसको वेट असाइन करते हैं. तो यहाँ पे हमने परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई की है और उसके रेलेवेंट एस्पेक्ट्स देखे हैं और उसको वेट दिया है. नेक्स्ट हमने आइडेंटिफाई इसमें काम करना है. ये देखें जी टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन के किस किस्म की परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड हैं. तो यहाँ पे ये 3 चीजें दिखाई हुई हैं कि जी वी कैन एक्चुअली चेक देयर ट्रेड्स, एम्प्लॉय के ट्रेड्स चेक कर सकते हैं, एम्प्लॉय के बिहेवियर चेक कर सकते हैं और रिजल्ट चेक कर सकते हैं. अच्छा, ट्रेड्स में क्या जो उनके एटीट्यूड है, ये हम कोऑपरेटिवनेस कह सकते हैं, ठीक है ना, सोशेबलनेस कह सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट जिसे हम कहते हैं वो कह सकते हैं, उसका इनिशिएटिव कह सकते हैं, क्रिएटिविटी. दीज आर ट्रेड्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स कह लें, उसके कुछ एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टेबल, दैट रिमेन स्टेबल ओवर टाइम. ठीक है. अच्छा, ये उसके बिहेवियर के व्हाट दिस पर्सन एक्चुअली डज और डजंट डू, बिहेवियर. अच्छा, इसमें क्या है जो उसके वर्बल परसुएशन, ठीक है ना, क्या वो वर्बली लोगों को परसुएड कर लेता है, कन्विंस कर लेता है. अच्छा, उसकी टाइमलीनेस ऑफ रिस्पॉन्स, क्या वो टाइम पे करता है काम, उसकी डिसीजन मेकिंग. दीज आर बिहेवियर्स ऑफ टिपिकल एम्प्लॉयज. अच्छा, ऑन दिस साइड देयर आर सर्टेन रिजल्ट्स. उसने सेल्स कितनी की हैं, उसने उसकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, उसकी कॉस्ट रिडक्शन का लेवल क्या है. सो कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया or most useful criteria? So obviously it is results based. ये क्या है, less useful है
ये वाली चीज़ें लेस यूजफुल है, इट वोंट एक्चुअली ट्रांसलेटेड इनटू एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये रिजल्ट्स में ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को शो कर रहे हैं, और ये जो बिहेवियर है इट लाई इन मिड ऑफ द रोड। तो ये इम्पोर्टेंट भी है, और इससे ट्रेड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रिजल्ट से कम इम्पोर्टेंट है। So these were the 3 types of information that we can seek. अच्छा, अब हमने देखना है कि जी how we can actually decide about relevance of performance criteria. So performance measures should use relevant criteria that focus on most important aspects of employees job. तो हमें कैसे देखना है ये सारी चीज़ें, हम प्रीवियस स्लाइड में देखा ना कि उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइमलीनेस और उसकी कोऑपरेटिवनेस और उसकी एक और चीज़ इम्पोर्टेंट थी। अब हमने देखना है कि हाउ वी कैन डिसाइड अबाउट परफॉर्मेंस मेजर्स दैट वी आर यूजिंग इन ऑर्डर टू मेजर द परफॉर्मेंस शुड बी रेलेवेंट एंड वी शुड बी सिलेक्टिंग ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज जॉब। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना? सो बाय चेकिंग द जॉब नेचर वी आर टू डिसाइड दैट व्हाट एस्पेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द जॉब परफॉर्मेंस, व्हाट क्राइटेरिया शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन जॉब परफॉर्मेंस। हम इसमें देखते हैं कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है अगर CSR एक इंश्योरेंस क्लेम सेंटर में, कि जहाँ पे लोगों के इंश्योरेंस के क्लेम्स आते हैं, अब उसने उनके साथ डील करने हैं। तो अब एक जो पॉलिसी का क्लेम आता है, ठीक है ना, कि मैंने ये पॉलिसी ली, अब वो सारा जो मेरा नुकसान होना था वो हो गया। इवन इट मे बी हेल्थ इंश्योरेंस, इट मे बी लाइफ इंश्योरेंस, मे बी जनरल इंश्योरेंस, कुछ भी है। तो जब क्लेम आता है तो उसमें क्या एटीट्यूड ऑफ CSR इज इम्पोर्टेंट या नंबर ऑफ क्लेम्स हैंडल्ड प्रॉपरली वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे एटीट्यूड इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कह ले कि 5 स्टार होटल के कस्टमर्स नहीं कि जिन्होंने बार बार आना, ये अपने क्लेम्स के लिए आते हैं। तो इट डजंट मैटर दैट हाउ दे आर ट्रीटेड, इट मैटर्स दैट whether they are satisfied with the transaction with the claim or not. जो क्लेम हैंडल है वो प्रॉपरली हो जाएगा तो इट सर्व द पर्पस। लेकिन ये नहीं कि उसने कितना ज्यादा कर्टियसनेस, कितनी ज्यादा उनके साथ कोऑपरेटिवनेस और फ्रेंडलीनेस शो करनी है, ये नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, हाउ मेनी क्लेम्स आर हैंडल्ड प्रॉपरली। अच्छा, these most important job criteria should be identified and linked to employee job description. ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं और इनका लिंक होना चाहिए उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। ये नहीं कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपने कुछ और दी हो, यहाँ पे आप परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कुछ और चेक करें। तो हियर वी कैन सी दैट ऑल ऑफ दीज एरियाज आर एक्चुअली इंटर रिलेटेड। तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो जो हमने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करने हैं, इट शुड बी एक्चुअली लिंक्ड विद देयर जॉब डिस्क्रिप्शन। This was about relevance of performance criteria. अच्छा, अब इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव मेजर्स यूज करेंगे और कुछ सब्जेक्टिव मेजर्स यूज करते हैं परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। उसके जो क्राइटेरिया हैं उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव मेजर्स होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव। तो अब उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं हम यहाँ पे देखते हैं। सो ऑब्जेक्टिव मेजर्स कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड और काउंटेड। तो अगर हम उसके परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव मेजर्स के बेस पे यूज करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो डायरेक्टली हम गिन सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड, द नंबर ऑफ इनवॉइसेस प्रोसेस्ड, इसके बेस पे हम डायरेक्टली। सो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है जी? दिस मेजर रिक्वायर्स जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ evaluator and are more difficult to measure. इसमें आप कहते हैं कि उस आपके एम्प्लॉय का एटीट्यूड टुवर्ड्स कस्टमर, उसका क्रिएटिविटी, उसकी इनिशिएटिवनेस, ये सारी चीज, उसकी मोटिवेशन, उसका ड्राइव, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या है? सब्जेक्टिव मेजर्स क्राइटेरिया। इस हमने सब्जेक्टिव यूज किए हैं इसके लिए मेजर्स। इन चीजों को जब हम एटीट्यूड और बिहेवियर को मेजर, तो इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट सर्टेन सब्जेक्टिव मेजर्स। अच्छा, ऑब्जेक्टिव मेजर्स टेंड टू बी मोर नैरोली फोकस्ड। तो ये बहुत नैरोली फोकस है। कितनी कार बेची, कितने आपने प्रोसेस किए हैं क्लेम्स, कितने आपने बिल बनाए हैं, कितने आपने कॉल्स हैंडल किए हैं, कितने आपने ऑर्डर सर्व किए हैं, कितने आपने जो पैक वो शिप किए हैं। तो ये क्या है?
ऑब्जेक्टिव मेजर्स हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये क्या, दीज आर नैरोली फोकस्ड or they may not actually cover different aspects of a particular job, so they are actually able to inadequately define job को हम पूरा तरह से define नहीं कर सकते by taking only objective measures. अब subjective measures क्या है, they may be actually may fall the prey of contamination or biasness. So इसकी वजह से या इसमें contamination आ जाएगी या biasness आ जाएगी. So both objective and subjective measures are not actually solution in isolation. अगर हम single दोनों कोई एक use करते हैं तो solution होगा. Actually we are to use both the subjective and objective measures and to check the performance. तो उसमें कोई किसी एक साइड पे हम नहीं जाएंगे. Here we are going to discuss certain performance standards. अब हमने उसमें क्या दिया कि ये areas important हैं, उसके परफॉर्मेंस एस्पेक्ट से ये एरियाज इंपॉर्टेंट हैं. उसके लिए हमने क्राइटेरिया आइडेंटिफाई कर लिया कि हम कैसे कैसे जज करें, उसकी कॉस्ट रिडक्शन, उसकी रेवेन्यू एनहांसमेंट और एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ये हमने कह दिया. अब इसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इसके एक्चुअल किस लेवल पे हम इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये देखेंगे. उसके हमने स्टैंडर्ड्स क्या सेट करने हैं. पहले हमने देखा क्या उनसे एरियाज इंपॉर्टेंट हैं. अब हम देखते हैं कि उसके स्टैंडर्ड्स हम कितने सेट करेंगे, किस लेवल पे कितनी उसे कॉस्ट रिडक्शन करनी चाहिए इन अ गिवन टाइम पीरियड, कितने उसे रेवेन्यू एनहांस करना चाहिए. जो हमने गोल सेट करने ऑब्जेक्टिव्स, ये एक्चुअली इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. वेल दे डिफाइन द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड आर बेंचमार्क्स, गोल्स आर टारगेट्स डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोच टेकन. यहाँ पे देखें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं. एक्चुअली परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स दे डिफाइन एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. What is actually expected? अच्छा, ये expected level of performance हम simple ये नहीं कह सकते कि जी you are to deliver a lecture for in a day for 30 minutes. तो ये ठीक है, level of performance तो ठीक है, लेकिन ये हम simple ये नहीं कर सकते कि within this organization we have to check that what is the practice in industry. दूसरे ऑर्गेनाइजेशन आपके competitors क्या करते हैं, ठीक है ना. आपने इसको एज ए बेंचमार्क यूज करना. प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, बेंचमार्क हम करते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ चेक करते हैं आपकी एचआर की परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है, वेदर दिस इज वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री, तो उनकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में क्या है, उसके कंपेरिजन में फिर आपने सेट करने हैं उनके. So these become goals or targets and they will also depend upon the approach taken. तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं. This would also be reflected while you are going to set the goals of these employees. So आपने जब performance standards set करने हैं तो उसमें you have to check the level of standards in competitors, or these targets or goals should be set while keeping into focus the level, the approach that you have taken. आपकी टेक्नोलॉजी, आपका मीडिया, आपकी अप्रोच, आपकी मशीनरी, सारी चीज़ आपने देखते हुए उसकी परफॉर्मेंस सेट करनी है. Well, these performance standards tell what is a satisfactory job performance. Satisfactory job performance क्या है, तो आपने क्या दिन में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, क्या आपने मंथ में 5 कार सेल करनी है, क्या आपने दिन में 50 यूनिट्स सेल करने हैं, क्या आपने दिन में 100 कॉल्स रिसीव करनी है, क्या है आपका टारगेट. सो सेटिस्फैक्ट्री जॉब परफॉर्मेंस शो करती है. वेल ऑल ऑफ दीज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स नीड टू बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर द वर्क इज परफॉर्म. तो आपने पहले उनको बताना, ये नहीं वो काम कर चुके बाद में आप उनको. सो दीज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड शुड बी सेट एंड कम्युनिकेटेड बिफोर द वर्क इज परफॉर्म सो दैट यू मे अचीव द एफिशिएंसी. अच्छा, अब हम परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड्स हैं या गोल्स हमने कहा तो कैसे होने चाहिए, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज गोल्स. सो वी आर टू एक्चुअली सेट इफेक्टिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, और वी मे कॉल इट गोल. दे शुड बी स्मार्ट. अब देखें जी स्मार्ट का क्या क्राइटेरिया है. सो दीज गोल्स शुड बी स्पेसिफिक. आपने बताना है कि किस एरिया में आपकी परफॉर्मेंस चेक होगी, क्या नंबर ऑफ कॉल्स पे, क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, क्या
क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन पे, क्या आपकी टाइम, तो आपने स्पेसिफिकली बताना है किस एरिया में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो चेक होगी. इट शुड बी मेजरेबल. तो quality of product should be measurable, quality of interaction should be measurable. So until unless you have not a proper scale to measure these areas जो आपने उनको टारगेट दिए हैं. Well, goals should be specific. Another characteristics of effective goal that it should be measurable. तो आपने जो भी goal set किए हैं, either in terms of quality, in terms of quantity, in terms of time, in terms of cooperativeness, in any terms you have actually identified, it should be measurable. तो आपकी quality of interaction, quality of customer service, quality of after sale service, ये सारी चीजें measurable होनी चाहिए. In concrete terms, आपके पास standardized tools होने चाहिए in order to measure the performance of employees on those aspects. Measurable, then these goals should be attainable. It should be within the reach of those employees. It should not be too much high. Unrealistic नहीं होने चाहिए, ये realistic होने चाहिए. Measurable, attainable होनी चाहिए. Then these goals should be relevant, means relevant to the performance, or relevant to the job, or relevant to the organizational strategy. और ये टाइमली आपने देना है, इन टाइम आपने टाइम स्पैन देना है कि विद इन दिस टाइम पीरियड यू आर टू एक्चुअली अचीव दिस गोल. अच्छा देखें जी, यहाँ पे ये सर्टन जॉब क्राइटेरिया आइडेंटिफाई किए हैं एक जॉब के. तो उसमें है जी दिस जॉब क्राइटेरियन कि यू आर टू कीप करंट ऑन सप्लायर टेक्नोलॉजी. ये एक मैनेजर की परचेज मैनेजर आप इसे कह सकते हैं, इसकी जॉब क्राइटेरिया है कि दिस पर्सन इज रिक्वायर्ड टू कीप करंट ऑन सप्लायर टेक्नोलॉजी. तो अब उसने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स कौन से आइडेंटिफाई किए हैं, ये इस पे उसने एस्पेक्ट्स कौन से निकाले हैं, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. और ये उसके अब देखते हैं कि उसने स्टैंडर्ड्स कैसे सेट किए हैं. अब कहता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स कि एवरी 4 मंथ्स, ये उसका जॉब क्राइटेरिया है, उसके ये 3 परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं. एवरी 4 मंथ्स यू आर टू इनवाइट सप्लायर्स टू मेक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी. सप्लायर को इनवाइट करके बताएं कि जी आप हमें कौन सी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी हमें दे रहे हैं. You are to visit supplier plants twice a year. After 6 months, you are to visit supplier plants. Then third उसका standard है, you are to attend trade shows quarterly. After 3 months, you are to attend these trade shows that are being held in anywhere in the world. और दूसरा एक जॉब क्राइटेरिया है किसी और जॉब के लिए, you are to do price or cost analysis as appropriate. तो उसकी प्राइस या कॉस्ट एनालिसिस करना है आपने. इसमें परफॉर्मेंस क्या है, स्टैंडर्ड क्या है जी. परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेबल व्हेन एम्प्लॉय फॉलोज ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोसीजर प्राइस एंड कॉस्ट एनालिसिस. वो कहता है आपने सारे प्रोसीजर्स यूज करें. तो हियर वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस कि आपने ये चीज कितनी दफा करनी है, कब करनी है, और किस लेवल पे करनी है. ये हम इसमें गोल्स में हमने सेट करना है. इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट रिस्पांस कैटेगरीज कैसे होनी चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल रिस्पांसेस कैन बी सेट टू मेजर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. उनके अगेंस्ट या तो 1 to 3 में ये न्यूमेरिकल रेटिंग है, या आप वर्बल रेटिंग कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, सेटिस्फैक्टरी, मार्जिनली अनसेटिस्फैक्टरी विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. तो जो यहाँ पे ये थी ना, परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेबल व्हेन एम्प्लॉइज फॉलोज ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोसीजर प्राइस एंड कॉस्ट एनालिसिस. तो इसके अगेंस्ट आप ये आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, सेटिस्फैक्टरी, मार्जिनल और अनसेटिस्फैक्टरी ये क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं टू चेक, टू रिकॉर्ड देयर रिस्पॉन्सेज. नेक्स्ट, दिस इज up till now we have identified the how to measure the performance. उसके लिए क्या क्राइटेरिया, उसके लिए क्या, कौन से एस्पेक्ट्स, कौन से क्राइटेरिया, कौन से जॉब स्टैंडर्ड, और उसके अगेंस्ट कौन से हम रिस्पांस कैटेगरीज यूज करनी है. और सेकंड स्टेप हम देखते हैं अब इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कैसे करनी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होगी. वेल दिस इज
next step of the process of performance management. This is actually the process of evaluating how well employees perform their jobs when compared to a set of standards. So previous step में जो हमने standard set कर दिए उनके against हमने अब उनकी performance measure करनी है. Performance, we have to measure their performance on the set standards. इसमें informal appraisal होती है, ये day to day जो छोटे organizations करती हैं, small size organization. The day-to-day working relationship between a manager and an employee offers an opportunity for the employee's performance to be evaluated. तो जो routine में interaction होते हैं उसमें opportunity होती है for the manager to evaluate employee performance. It is essentially undocumented, ठीक है ना, but it is appropriate as when the time is an issue. तो अगर आपने अर्जेंसी में कोई ऐसा प्रॉब्लम देख लिया एंड यू एज अ मैनेजर यू शुड नॉट इग्नोर दैट परफॉर्मेंस एंड यू शुड नॉट वेट फॉर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल फीडबैक. उसके लिए आपने वेट नहीं करना, यू हैव टू प्रोवाइड फीडबैक. सो दिस कैन बी दिस इनफॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल शुड बी एक्चुअली प्रैक्टिस्ड एज अ रूटीन मैटर विद इन डे टू डे इंटरेक्शन. लंच पे आप डिस्कस करते, आते जाते कॉरिडोर में डिस्कस करते, मीटिंग के स्टार्ट या एंड के बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन ये होनी चाहिए एक प्रॉपर वे में. नेक्स्ट है जी, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन बी डन थ्रू अ स्पेसिफिक सिस्टमैटिक वे. सिस्टमैटिक अप्रेजल आपने करनी है. सो इट इज यूज्ड व्हेन द कॉन्टेक्ट बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय इज फॉर्मल. तो ये सिस्टमैटिक अप्रेजल कब होगी? जब फॉर्मली उनका कांटेक्ट होता है, किसी मीटिंग रूम में, किसी कह लें कि कोई कॉन्फ्रेंस रूम में उनका कांटेक्ट होता है. एंड दिस एज अ सिस्टम इज फॉर विच अ सिस्टम इज इन प्लेस टू रिपोर्ट मैनेजरियल इंप्रेशंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. अब इस कह लें फॉर्मल कांटेक्ट बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय, इसमें क्या है जी, देयर इज अ सिस्टम that whereby the manager would be reporting his or her impressions and observation on employee performance. तो अब इस सिस्टम में जो मैनेजर है वो रिपोर्ट करेगा उसके इम्प्रेशन, उसके ऑब्जर्वेशन, उसने जो चीज़ें मेजर की हैं, जो देखी हैं, जो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी, अब उसने उसे फॉर्मली उसके साथ डिस्कस करना है. दिस इज सिस्टमैटिक अप्रेजल. दूसरी इनफॉर्मल. दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने अपने कह लें कि टाइम है जब आपने ये चीज़ें करनी है. None of the approach should be foregone. None of the approach should be ignored. Well, this systematic appraisal is actually conducted at regular intervals. ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स आप इसे यूजुअली ईयरली होती है, लेकिन 6 मंथली या क्वार्टरली भी होनी चाहिए इस परफॉर्मेंस अप्रेजल. और इट इज एसेंशियली डॉक्यूमेंटेड. ये चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, चीज़ें रखी जाती हैं. इसका जो भी होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल या जो फीडबैक सेशन है या जो आपने उसके लिए सजेशंस की हैं in order to improve their performance, each and everything should be documented as an evidence for necessary actions in terms of promotion, in terms of bonuses, in terms of incentive. जो भी आपने करना है उसके लिए आपके पास एक वैलिड रिकॉर्ड के तौर पे ये रहनी चाहिए. परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसकी रिपोर्ट आपके पास रहनी चाहिए. Then this slide shows that how the activities or responsibilities for this performance appraisal are divided between HR unit and typical line manager. तो HR unit ने क्या करना है? He is responsible to design and maintain appraisal system. Appraisal system अब इसने डिजाइन करना है और मेंटेन करना है. सारी चीजें HR unit के पास होंगी, उस मैनेजर के पास होंगी. This is required to train the raters. जो जब आपने परफॉर्मेंस रेट करनी है, चेक करनी है, तो उसमें आपने रेट करना है. जिसने भी अप्रेज करनी है, इधर बॉस, इधर सबॉर्डिनेट, इधर पीयर, इधर कस्टमर, तो आपने से ट्रेन करना हाउ टू रेट परफॉर्मेंस अप्रेजल. देन यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रैक टाइमली रिसीट ऑफ अप्रेजल. आपको टाइम पे मिल जाएंगे जी. बॉस ने अपने सबॉर्डिनेट्स की कर दिया परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक पीयर ने अपने दूसरे पीयर की कर दिया, सबॉर्डिनेट्स ने अपने सुपरवाइजर की कर दी है. तो ये सारी चीजें आपने चेक करनी है. सो यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रैक द टाइमली
receipt of these appraisal. Then you are required to keep review this completed appraisal for consistency. फिर आपने इसको देखना है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप इसको रिव्यू करते रहे, जो भी कंप्लीट हुए इसको आप इस सारे प्रोसेस को रिव्यू करते रहते हैं. सो दीज आर द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय HR manager or HR unit. On the other hand, there are certain activities that are to be performed by the line manager. So these are these managers are required to rate performance of employees. So actual line managers ने अपने अपने department के employees की performance को rate करना है. So this is an important activity to be performed by the line manager. They are required to prepare formal performance appraisal documents. So उनकी किस परफॉर्मेंस, किस क्राइटेरिया, किस एस्पेक्ट पे आपने मेजर करनी है, क्या उनको क्राइटेरिया देना है, क्या उनको वेट देना है, क्या उनको गोल सेट करने हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या लाइन मैनेजर के थ्रू होनी चाहिए. दिस मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू रिव्यू अप्रेजल्स विद एम्प्लॉइज. तो उसने ये रिव्यू भी करनी है. अब अगर मैं मैनेजर हूँ, मैंने सारी उनके साथ कर ली है परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो मैं बाद में उसको रिव्यू भी करूँगा, उनके साथ शेयर करूँगा performance appraisal. Then as a line manager I am to identify development areas कि अब आपके परफॉर्मेंस यहाँ पे एक्सीलेंट है, यहाँ पे सेट है, यहाँ पे पुअर है, तो कहाँ पे आपको आपने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है. At the end we are to discuss certain benefits of this performance appraisal. इसके benefits क्या हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के. Well, despite of imperfect measurement techniques, this individual differences in performance can make us difference to company performance. तो जब हम individual employee को कहेंगे आपकी ये performance है, although there are imperfections, but somehow these may be translated into company performance. This can make a difference to company performance. Well, documentation of performance appraisal and feedback may be needed for legal defense. तो अगर आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल हो जाता है कोर्ट में, तो वो आप कैसे डिफेंड करें अपने को? बाय प्रोवाइडिंग document of performance appraisal that we have actually terminated this employee on valid reasons. We have strong valid reasons with us in order to terminate this employee. अच्छा, this approval provides a rational basis for constructing a bonus or merit system. तो जो हमने ये परफॉर्मेंस अप्रेजल किया है, इसकी बेस पे हम जो भी बोनस या मेरिट हमने डिसाइड करना, सो इट ऑफर्स अ वैलिड बेस for our decisions. Then these appraisal dimensions and standards can help to implement strategic goals. So on the basis of this performance appraisal, organization would be actually implementing its strategic goals. So उसके जो strategic goals हैं कैसे implement होंगे? How these strategic goals would be translated into performance of each and every employee would be determined through this setting goals, गोल सेट करना और उनकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन को कम्युनिकेट करना, इसके थ्रू होंगे उसकी ट्रांसलेट. देन डिस्पाइट द ट्रेडिशनल फोकस ऑन द इंडिविजुअल अप्रेजल क्राइटेरिया कैन इंक्लूड टीम वर्क एंड द टीम्स कैन बी द फोकस ऑफ द अप्रेजल. तो हम यूजुअली अप्रेजल करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं ये इंडिविजुअल बेसिस पे, लेकिन ये टीम बेसिस पे भी हो सकते हैं. सो दीज आर सर्टन benefits of performance appraisal. ठीक है, so now here we are going to make an end to this lecture. Now I am going to give you the summary of lecture 9. Well, students, we have discussed this performance management system, that here we are to actually align the individual behavior, uski outputs, individual employees behavior outputs with the strategic goals and objectives of an organization, so that this organization is able to achieve its overall goals. Then we discussed the purposes of performance management system. So here we said that it has to serve 3 purposes: strategic goal in order to achieve its overall objective, एडमिनिस्ट्रेटिव गोल कि जो हमने उसके डिसीजन लेना, प्रमोशन के, टर्मिनेशन के, ले ऑफ के डिसीजन लेने, हमने ट्रांसफर के डिसीजन लेने, डिमोशन के, सो ऑल शुड बी बेस्ड अपॉन सर्टन वैलिड रीजंस. उनके परफॉर्मेंस को लिंक करना चाहिए उसके साथ. और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में फिर हम उसके कोई
ले ऑफ करते हैं या कोई बोनस या कोई हमने उसको इंक्रीमेंट देना है, कोई हम उसको इंसेंटिव देना है, शुड बी लिंक विद द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसका तीसरा फंक्शन था डेवलपमेंटल के आउट ऑफ विद द रिजल्ट ऑफ दिस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम we would be able to identify the areas of improvement for individual employees. So by identifying these areas, we would be requiring these employees to develop themselves within these areas, and here we would be actually offering different training and development programs to these employees in order to enhance themselves on certain abilities, certain skills, certain knowledge, as well as in order to develop their leadership or managerial skills. So it can serve three purposes. Then we have discussed certain criteria for effective performance management systems, or if we have discussed 5 effectiveness criteria. Here we said that it should be have a very good fit with the strategy. The criteria measure that we are going to use going to measure the performance appraisal should be reliable. This should be valid. इसमें कोई contamination या कोई deficiency नहीं होनी चाहिए। ये performance management जो system है, it should be acceptable to the employees for which you are going to apply it, and it should be legal, acceptable. Well, we have discussed the criteria for effective performance. अब उसमें कहते हैं कि इस performance measurement system को, performance management system को fit with the strategy होना चाहिए, इसको reliable होना चाहिए, valid होना चाहिए, acceptable होना चाहिए. Then we have discussed the link of performance management system with organization strategy, outcomes and results. And at the end we have discussed the process of performance management system के इसके 3 main steps हैं. We have to identify and measure employee performance, then performance appraisal, and final providing feedback. Within this lecture we have discussed only 2 steps, identifying and measuring employee performance, and to some extent we have discussed this performance appraisal step. So this was a summary of lecture number 9. These are the reference books that I have used for this lecture: Fundamentals of Human Resource Management by Raymond A. Noah, John Hollenbeck, Barry Garrett, Patrick Wright. Second book was Human Resource Management, Robert L. Mathis and John Jackson. So this was all about lecture number 9. Thank you very much.